हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। समुद्रगुप्त। हु इज द समुद्रगुप्त? देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Chandragupta was succeeded by his son is Samudragupta. Chandragupta succeeded by the son of Samudragupta AD here 335 to 375. There is a long time. Samudragupta followed the policy of conquest and the emotions is enlarged his kingdom. And his achievements are recorded in the long inscription of Prasasti is written in the pure Sanskrit by the court poet Hari Sen. There is the most important Hari Sen written there is the pure Sanskrit by the Hari Sen. And the inscription is the enlarged grapes of the pillar at the Allahabad. There is in grapes on a pillar at the Allahabad. It is eminent in the peoples and the reasons is a concrete the Samudragupta. We is adopted a different policy of different area and as a conquered by him. That is the most important. In the Ganga Yamuna Dwab is the flow of policy of annexations. He is defeated a 9 Naga rules and incorporated their kingdoms in the Gupta Empire, and he then proceeded to the conquer that of forest kingdom of central India. Mentioned are the Atvarajyas as the rulers of this tribe, and the area were defeated on the forced into the servitude. The area had a strategic value as a contained a route to the South India. It is invalid in the Samudragupta to proceed to the south along to the eastern coast and the conquering 12 kings on the way and the reached as far as Kochi near Chennai. Samudragupta studied of the Naxis and their kingdoms and liberated and stated and these kings on their horn. And this policy of political is a consolation for the South India was adopted because he knew that it is difficult to keep them under to control and surveillance, and some of the returned to the capital in the north. And so it was enough for him that this is a state or recognized his sovereignty and paid him to the tribute and present. That are most important. According to the Allahabad inscription, the warnings 5 founder of kingdom and 9 republican state of Punjab and Western India were overwhelmed by the consequence of the Samudragupta. These agreed to pay of tribute and the taxes to the Samudragupta and will his order without any fight. The inscription added that Samudragupta also received a tribute and from many kings of Southeast Asia. It is generally believed that is that tough he had spread his influence over a vast area. Samudragupta exercises directly administration control mainly over to the Indo-Gangetic basin. And he is celebrated his consequence by performing as a horse, as a sacrifice, as a Ashwamedha. And there are issue of the Ashwamedha types of coin. Ashwamedha is a types of coin. The coin is a processing their sense of sacrifice on their occasion. Samudragupta was not only a conqueror but also a poet, a musician, and the patron of learning. His love and music are tested by his coin that is represented his on the playing on the veena is means lute. Here show the most important map here of the Gupta Empire, the close of the 4th century. There is the most important figure here on the map. There is the most important area show in this side. यहाँ पर देखा जाए तो हमारा अगला जो है वो है समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी रोचक रहेगा। कहते हैं समुद्रगुप्त जो था सन जो है 335 से लेकर 375 तक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो था समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने जो है युद्ध तथा विजय की नीति का अनुसरण किया एवं अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार भी किया और उसकी उपलब्धि का संपूर्ण विवरण उसके राज
दरबारी कवि हरिसेन द्वारा जो है संस्कृति में लिखे गए वर्णन में लिपिबद्ध किया गया है। यानी जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त के विषय में विस्तार पूर्वक जो है लिपिबद्ध किया हुआ है और इसकी जानकारी हमें साफ मिलती है। यह आलेख जो इलाहाबाद के निकट एक स्तंभ पर वर्णित है और यह समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए वंशों तथा क्षेत्रों के नाम से प्रताड़ित है और उसने हर जीते हुए क्षेत्र के नीच जो है विभिन्न नीति अपनाई थी। यानी हर क्षेत्र को जीतने के लिए उसने विभिन्न नीतियों का अनुसरण किया था। गंगा यमुना द्वाब ने उसने दूसरे राज्यों के जो है बलपूर्वक सम्मिलित करने की नीति का अनुसरण किया था। उसने 9 नागा शासकों को पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। तब पश्चात वह मध्य भारत के वन प्रदेशों को और बढ़ा, जिनका जो है उल्लेख हमें अतवीरा राज्य के रूप में मिलता है और इस कबालाई क्षेत्र के शासक को पराजित हुए और दास्तों को बांधे हुए। इस क्षेत्र की राजनीतिक दृष्टि से भी व्यापक महत्व रहता है क्योंकि इसमें दक्षिण भारत के जो है मार्ग जाता था। उसने समुद्रगुप्त के दक्षिण की ओर कूच करने में सक्षम किया तथा जो है पूर्वी तट से जीते हुए 12 शासकों को पराजित करते हुए वो सुदूर कांची यानी चेन्नई के निकट तक पहुंच गया। समुद्रगुप्त ने राज्यों के बलपूर्वक अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए स्थान प्रभुत्व का परिचय भी दिया तथा उस शासकों को उनके राज्य वापस लौटा भी दिए। यानी जीतने के बाद उसने उस राज्य को जो है उसी शासक को लौटा दिया, लेकिन उसने अपने अधीन कर लिया। दक्षिण भारत के लिए राजनीतिक समझौता की नीति इसलिए अपनाई गई क्योंकि उसे ज्ञात था कि एक बार उत्तर भारत में अपने क्षेत्र में लौटने के पश्चात इन राज्यों पर नियंत्रण स्थापित रखना दुष्कर होगा। इसलिए उसने जो है जीतने के बाद जो है उसी शासक को अपना दास बना के छोड़ देता था। अंत उसके लिए इतना पर्याप्त था कि वह शासक उसकी सत्ता को स्वीकारे तथा उसे कर तथा उपहारों का भुगतान करे। इलाहाबाद अभिलेख के अनुसार 5 पड़ोसी सीमावर्ती प्रदेश था, जैसे पंजाब एवं पश्चिम भारत के 9 जो है गणतंत्र समुद्रगुप्त की विजय से भयभीत हो गए थे। उन्होंने बिना युद्ध किए ही समुद्रगुप्त के धन तथा करों का भुगतान करना था एवं उसके आदेशों का पालन करना स्वीकार कर लिया था। यानी देखा जाए तो समुद्रगुप्त का यही उद्देश्य था कि राजाओं को जो है युद्ध में हरा देना और वो राज्य को आपस जो है उन्हीं को सौंप देना। उनको सौंपने का ये मतलब था कि वो हर जगह पर कंट्रोल करना उसके लिए संभव नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि जो राजा हो उसको कर दे और जो है उसको उपहार दे समय समय पे। इसलिए समुद्रगुप्त ने ऐसा जो है नीति का अनुसरण किया। इससे देखा गया तो बहुत से जो है 9 गणतंत्र जो है राज्य जो स्वयं ही जो है समुद्रगुप्त के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसने क्या किया, उसको उपहार देने के लिए और कर देने के लिए बाध्य हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। कहते हैं अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के भी कई शासकों ने समुद्रगुप्त के जो है धनाधिक्य प्राप्त होना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। मुख्य रूप से यह माना जाता है कि हालांकि उसका साम्राज्य एक विस्तृत भूखंड तक फैला हुआ था, किंतु समुद्रगुप्त का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य गंगा घाटी में ही था। यानी गंगा घाटी के आसपास ही वो अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। वो अपनी विजय का उत्सव जो है अश्व बलि देकर मनाता था। यानी अश्व की बलि देना उसकी जीत का जो है सबसे बड़ी प्रचालक था। जो अश्वमेध जो था एवं उसका अवसर पर जो है अश्वमेध प्रकार के सिक्के बलि के वर्णित करके सिक्के जारी भी करता था। समुद्रगुप्त केवल विजेता ही नहीं था बल्कि एक कवि, एक संगीतकार तथा एक शिक्षा का महान संरक्षण भी था। संगीत के प्रति उसकी प्रेम उसकी उन मुद्राओं में मुखरित होती है जिनमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी सिक्कों से भी उसकी हमें महानता का जो है कुछ प्रमाण मिलते हैं।